So we'll start in 2 minutes. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay, so let us start. So I welcome you all to this heat transfer class. So since it has been at least 1 month since we have studied heat transfer, so I thought that it would be a good idea if we could just refresh it. But this time, instead of going through theory, we'll try to recap everything from some examples. Okay. So this is the same problem set one example which I had uploaded, I think a month back. So I hope you might have tried it. If not, then I'll just try to solve some of the examples in this. Try to recap everything. Okay. So let's try to understand. Okay. So for the first question is the temperature distribution across a wall 1 meter thick at a certain instant in time is given as this. तो इसका मतलब क्या है, हमें दे रखा है कि what is you know given, or let's say use known, what is known to us, that we have a wall, ठीक है, whose length is equals to L is equals to how much, 1 meter, ठीक है, 1 meter at a certain instant in time, ठीक है. दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, 1 meter बॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन टाइम, दैट इसका मतलब ये जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टी एन एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एट सम टाइम टी इज इक्वल्स टू टी वन. ठीक है, मतलब टेम्परेचर इज नॉट, दो हियर वी थिंक that temperature is a function of only x, since this has been mentioned कि at a certain instant in time, that means temperature is also going to be a function of time and position, and at particular this temperature distribution is at particular time. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब the wall is not steady state, the wall is at unsteady state condition. However, at particular instant which we are going to consider, the distribution is this, ठीक है, which is nothing but parabolic. अगर ये है this, it's like ax square plus bx plus c, so it's a parabolic expression, ठीक है, where T is the temperature to profile in degree Celsius, X is in meters, while A is 900 degree Celsius, B is this value, and C is this value. A uniform heat generation Q dot has been is present in the wall of area 10 meter square. इसका मतलब we have been given this. We are also given that temperature as a function of, this is what, ax plus bx square, a, just a minute. ठीक है, ओके, या
The temperature has been given as A plus bx plus cx स्क्वायर. हमें ये भी दिया है, एबीसी की वैल्यू दी है. एबीसी की वैल्यू तो रख ही देते हैं. टेम्परेचर टी एस T1 एंड एक्स इज 900 प्लस सॉरी माइनस 300 फिर -50 एक्स स्क्वायर. ठीक है. हीट जनरेशन हैज बीन गिवन. यूनिफॉर्म हीट जनरेशन इज 1000 watt per meter cube. ठीक है. उसके बाद हमें एरिया भी दे रखा है. एरिया ऑफ वॉल इज 10 मीटर स्क्वायर. प्रॉपर्टी भी दे रखी है रो के सीपी. तो रो दे रखा है 1600 kg पर मीटर क्यूब. उसके बाद के दे रखा है 40 वैट पर मीटर केल्विन. और सीपी भी दे रखा है 4 किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन. ठीक है. हमें पूछा गया है व्हाट आर वी आस्क्ड. we are asked to determine the rate of heat transfer entering the wall at x equal to 0 and leaving the wall at x equal to 1 meter. That is the first question. Second question is determine the rate of change of energy storage in the wall. And the third question is determine the rate of temperature change at this phases. तो इसको अगर हम डायग्राम बनाएंगे, so if you want to create a diagram, so we have a wall like this. ठीक है. जिसका एरिया हमें दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर. उसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मान लो ऐसा कुछ है. तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे रखा है ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. उसके बाद क्यू डॉट दे रखा है हमें यहाँ पे. क्यू डॉट है 1000 वैट पर मीटर क्यूब. के वैल्यू दे रखा है, रो वैल्यू दे रखा है, सीपी वैल्यू दे रखा है. और क्या हो रहा है, एनर्जी क्यू इन ये है एंड एनर्जी क्यू आउट ये है. ठीक है. एंड दिस इज लाइक एक्स. तो ये जैसे मान लो x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1 मीटर है. तो ये डिफरेंट है. x इक्वल टू लेट्स से 0.2 मीटर, x इक्वल टू 0.8 मीटर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो हमें हमें ये निकालना है डिटरमाइन दी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब क्यू डॉट. इसका मतलब इसका यूनिट होगा वैट पर मीटर. रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके. तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज we have to find heat rate entering. So let us put that as first one, rate of heat entering, that is q in ये वाला, which is nothing but at x equal to 0. ठीक है. and leaving, which is q out, which is at x equal to 1 meter. इसको just do 1. Second thing which we have to find is rate of change of energy storage in the wall. ये क्या है, ये बेसिकली एक्यूमुलेशन टर्म है जो हम लिखते हैं ना. ओके. तो दिस इज लाइक ई एक्यूमुलेशन और क्यू एक्यूमुलेशन. which is nothing but E store. Okay, this is fine. This is nothing but Q storage.
ठीक है. And the third thing which we have to find is time rate of change. Time rate of change of temperature at x equal to 0, x equal to 0.25 and x equal to 0.5 मीटर. इसका मतलब क्या है? dou t by dou x at x equal to 0 क्या है? dou t by dou x at x equal to 2.5 और dou t by dou x at x equal to 0.5 मीटर. ठीक है. So these three things is what we have to find: heat transfer rate entering and leaving, rate of change of energy storage in the wall, which is nothing but Q accumulation term, and the time rate of change of temperature at these values. ठीक है. तो इसमें हम assumption क्या करेंगे? The first assumption which we are going to make is that it's a one dimensional flow. अब ये हमें कैसे पता? Because हमें दे रखा है t at some instant and x is a plus bx plus cx square. मतलब टाइम टेम्परेचर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ one position at an instant. Let us assume that this is the x direction, this is x, this is y. Okay, तो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है. दैट इज फर्स्ट assumption. सेकंड इज आइसोट्रोपिक मीडियम. अब ये हम कैसे मानेंगे? क्योंकि हमें दे रखा है ओनली एक के वैल्यू. तो इसका मतलब के एक्स इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के जेड इज नथिंग बट के. ठीक. एंड थर्ड इज यूनिफॉर्म हीट जनरेशन. ठीक है. Now let us try to do analysis. ठीक है. तो उसको कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दैट हीट रेट्स एंटरिंग दिस. तो ये क्या हो जाएगा? क्यू बेसिकली क्या है? दैट वंस टेम्परेचर ठीक है, क्यू इज नथिंग बट माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स. बराबर. so that means q in, which is nothing but q at x equal to 0, is nothing but minus k into a dt by dx at x equal to 0. ठीक है. बट t हमको दे रखा है, बट t इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. इसका मतलब डी टी बाई डी एक्स इज बी प्लस टू सी एक्स. फ्रॉम 1 and 2, q in is nothing but q at x equal to 0 is nothing but minus ka into b plus 2cx at x equal to 0. तो बेसिकली q in क्या हो गया? q in is minus k into a into b. so now you just have to put in the values. ठीक है. k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है व्हाट इज द k वैल्यू? 40. सो k की वैल्यू होगी तुम्हारी माइनस 40 multiplied by a. What is the value of a? 10 meter square. Or let me put minus 40 watt per meter Kelvin multiplied by area value which is 10 meter square multiplied by b value which is
300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। तो ये आ जाती है -120 into 10 to the power 3 watt, which is -120 kilowatt, right? माइनस का मीनिंग है द डायरेक्शन विच वी हैड कंसिडर, इट्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आई थिंक सी वैल्यू इज, या ठीक है, आई थिंक दिस इज माइनस, या इट इज माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट क्यू आउट वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, क्यू आउट भी तुम्हारा वही रहेगा, क्यू आउट। ठीक है, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट, ये मैं निकाल नहीं रहा हूँ, सिमिलरली क्यू आउट इज -k into a into dt by dx at x equal to 1 meter। ठीक है, now it is the second question, so we have basically answered this part। now हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोरेज। इसका मतलब क्या है, so if you do the energy balance, the second part is to find rate of change of energy storage। अगर इज वेरी सिंपल, अगर ये तुम्हारा वॉल है and this is the amount of heat entering the wall, this is the amount of heat exiting with the wall, and and this is the amount of heat which is generated। तो इसका एनर्जी बैलेंस क्या रहेगा, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन। बराबर, दिस इज लाइक वेरी बेसिक expression which we have used to to derive that expression, which is -k into dou 2t plus q dot by k, सॉरी, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था, dou 2t plus q dot by k is equals to 1 by alpha dou t by dou t। ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने एनर्जी बैलेंस करके तो निकाला था, वो एनर्जी बैलेंस ये था। ठीक है, तो अगर हम करेंगे क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस क्यू डॉट शुड बी इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन, और यही हमें चाहिए। एक्यूमुलेशन मतलब ये accumulation, that is what they have asked। so in the first part we have calculated this, we second in the second part of the first part we have calculated this, and this is already given to us। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो फिर मैं कर ही देता हूँ। क्यू इन इज नथिंग बट क्यू इंटू ए इंटू एल, विच इज 1000 watt per meter cube multiplied by 10 meter square multiplied by 1 meter। Q out is equal to Q at x equal to L, which is -k into dou t by dou x at x equal to L, which is nothing but equal to -k b plus 2cx at x equal to L। तो इसका मतलब, ठीक है, Q आउट आ जाता है हमारा यूजुअल एक्चुअली 160। ठीक है, सिमिलरली Q इन तुम्हारा आ जाएगा Qx at x equal to 0, which is -ka b plus 2cx, which is 120। ठीक है, तो यूजिंग this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, तो ये सब मिला के from 1 to 4 we get
E accumulation, energy in which is 120 kilowatt plus जनरेशन. सो क्यू डॉट क्या है? क्यू डॉट है हमारा 1000 वैट पर मीटर क्यूब, बराबर. तो ये क्या हो गया तुम्हारा? क्यू डॉट तुम्हारा हो जाएगा 1000, और लेट मी डू फर्स्ट. तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है किलोवाट. ठीक है, सबका यूनिट है किलोवाट. ये सब सबका यूनिट है किलोवाट. तो जो हमारा ये जो आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन कहा गया, ये वाला एक्सप्रेशन. सो दिस हैज टू बी इन किलोवाट. ये भी किलोवाट में चाहिए, ये भी हमें किलोवाट में चाहिए, तब जाके ये हमारा किलोवाट में आएगा. तो हमने क्यू क्यू इन तो हमने निकाल लिया. दिस इज द किलोवाट इन क्यू इन. सॉरी, ये क्यू इन हो गया तुम्हारा, ये क्यू आउट हो गया. सो क्यू इन तुम्हारा हो गया 120 किलोवाट, और क्यू आउट हो गया 160 किलोवाट. तो क्यू डॉट क्या है? इन वैट. वो आएगा तुम्हारा क्यू डॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, विच इज 1000 जो हमने दे रखा है, हमें दे रखा है वैट पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्लैब मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द स्लैब. ये क्या है? 1000 वैट पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10,000 वैट, विच इज नथिंग बट 10 किलोवाट. तो क्यू डॉट जो तुम्हारा है, इट्स नॉट एक्चुअली क्यू डॉट, इट्स क्यू क्यू जेन. ये तुम्हारा हो गया 10 किलोवाट. ठीक है, तो सब लेके फ्रॉम 1 to 5 क्यू accumulation is nothing but क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस क्यू जेन. जो क्या आएगा तुम्हारा? क्यू इन क्या है? 120 माइनस 160 प्लस 10. इसका मतलब क्यू एक्यूमुलेशन है -30 किलोवाट. अब ना व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस माइनस? इस माइनस का मतलब है हीट इज लिविंग, हीट इज लिविंग द सिस्टम. ठीक है, इसका मतलब जो टेम्परेचर ऑफ द स्लैब है, जो टेम्परेचर ये हमने बोला है, ये ये जो टेम्परेचर है ये हमेशा कम होता रहेगा. ठीक है, दिस टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट 30 किलोवाट ऑफ एनर्जी इज लिविंग द सिस्टम. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं. दी फिजिकल फिजिकल interpretation of negative value of Q accumulation means that heat is leaving the system. Heat is going, or the going, or we can write the wall is losing, that the wall is losing 30 kilowatt of energy, and this is, इसको हम करेंगे रेड. ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो दो क्वेश्चंस वी हैव आंसर्ड. व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट दिस. दिस इज वेरी इजी. हमें दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है हमें. व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द डो टी बाय डो एक्ट
at x equal to, I think, 0 पे क्या है, dou t by dou x at x equal to 0.25 पे क्या है, एंड dou t by dou x at x equal to 0.5 पे क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे, we will use we will use तो ये क्यों बता सकता है, देखो हमको ये दे रखा है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्स, सॉरी, हमें दे रखा है वी आर गिवन टेम्परेचर एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इन टाइम एंड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इन एक्स इज a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर, और हमें पूछा गया है डो टी बाई डो एक्स की वैल्यू इन जनरल, यहाँ पे टाइम एस्पेक्ट नहीं है, तो वी कैन नॉट जस्ट टेक डो टी बाई डो एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू डो टी, ये जो टेम्परेचर है इसका सीधा लेके हम ये नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज दिस टेम्परेचर प्रोफाइल इज गिवन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इन टाइम एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, हेंस ऐसे बाय यूजिंग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, बाय यूजिंग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, और जनरलाइज एनर्जी बैलेंस क्या है, डो टू टी प्लस क्यू डॉट बाई के इज इक्वल टू 1/α इंटू डो टी बाई डो टी, ठीक। सो सिंस इट्स अ वन डायमेंशनल थिंग, हम इसको ले सकते हैं डो टू टी बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाई के इज इक्वल टू 1/α डो टी बाई डो टी, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, डो टी बाय सॉरी डो बाय डो एक्स ऑफ डो टी बाय डो एक्स प्लस क्यू डॉट बाय के इज इक्वल टू 1/α डो टी बाय डो टी, सो लेट अस कॉल दिस एज एक्सप्रेशन 1। तो डो बाय डो एक्स ऑफ डो टी बाय डो एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, डो बाय डो एक्स ऑफ हमारा हो जाएगा बी प्लस 2cx, जो कि हो जाता है तुम्हारा 2c, एंड c की वैल्यू हमने दे रखी है यहाँ पे -50, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -50, इसका मतलब डो बाय डो एक्स ऑफ डो टी बाय डो एक्स विच इज नथिंग बट डो टू टी बाय डो एक्स स्क्वायर इज -100 डिग्री सेल्सियस पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब हमें दे रखा है डो टी बाय डो टी इज नथिंग बट 1/α डो टू टी बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस, और इसको अल्फा से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे से हो जाएगा तुम्हारा k बाय रो सी पी एंड q बाय रो सी पी। इसका मतलब डो टी बाय डो टी इज k की वैल्यू इज 40 वाट पर मीटर केल्विन डिवाइडेड बाय 1600 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 किलो जूल पर kg इंटू केल्विन प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय -100 डिग्री सेल्सियस प्लस बाय मीटर स्क्वायर प्लस क्यू डॉट ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म जो कि है 1000 वाट पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1600 kg बाय मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 किलो जूल पर kg केल्विन। तो यहाँ से हमें मिला डो टी बाय डो टी इज इक्वल टू क्या है, फाइनली वैल्यू आया -4.69 इंटू 10 रेस टू 10 रेस टू पावर -4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड,
इसका मतलब हुआ हमें जो चाहिए था डो टी बाय डो एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 which is equals to dou t by dou x at x equals to 0.25 which is equals to dou t by dou x at 0.5 is nothing but dou t by dou t and is equals to minus 4.69 10 raised to power minus 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप इसमें से हमने क्या सीखा। इसमें से हमने सीखा कि from this result it is evident that the temperature at every point within the wall is decreasing with time, बराबर, and Fourier's law can always be used to compute the conduction heat rate from the knowledge of temperature distribution। तो ये लिख लेते हैं। सो कमेंट और take home lesson we can say, first take home lesson is that it is evident that the temperature at every point, that the temperature at every point within the wall is decreasing with time। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यू अक्यूमुलेशन आया था वो नेगेटिव था, बराबर, और याद हो तो -30 वाट पर मीटर क्यूब था शायद। ओके, एंड द सेकेंड टेक अवे इज Fourier's law of heat conduction can always be used to compute the heat conduction rate from the knowledge of the temperature distribution। Temperature distribution even for unsteady state heat condition, unsteady state heat conduction with internal heat generation present। ठीक है, now let us go to the second question जो कि बहुत इजी है मेरे ख्याल से। या तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि consider a steady state, so very important, steady state condition for one dimensional conduction in a plane wall having a thermal conductivity of this value। ठीक है, and thickness is this with no heat generation। ठीक है, तो ये हमें वॉल दे रखा है, दिस इज द वॉल whose one end is maintained at temperature T1 and another end is maintained at temperature T2, and we are also given its K value, that is the thermal conductivity given. We are also given that the rate of heat generation is 0, and we are also given that the thickness is some value 0.25 meter। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना हीट ट्रांसफर फ्लक्स and so determine the heat flux and the unknown quantity for each case and sketch the temperature distribution।
ठीक है, तो हीट ट्रांसफर फ्लक्स मतलब क्या हो गया, हीट फ्लक्स मतलब हमारा हो जाएगा क्यू डबल डैश विच इज वैट पर मीटर स्क्वायर। ये हमें हीट फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, दिस इज वेरी इजी सॉल्यूशन। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो हीट, हमें तो ये पता है कि जनरलाइज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या है, डो टू टी प्लस क्यू डॉट बाय के इज इक्वल टू 1/α। इसका अजम्पशन है कि आइसोट्रोपिक सिस्टम होना चाहिए और एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर। और सिंस हमें ए की कंडक्टिविटी वैल्यू दी है यहाँ पे, इसका मतलब इट इज आइसोट्रोपिक सिस्टम एंड इट इज नथिंग बट अ प्लेन वॉल। जब प्लेन वॉल है तो इसका मतलब एरिया भी कांस्टेंट है, तो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। तो इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो इसको ऐसे लिखें, डो टू टी प्लस डो एक्स स्क्वायर डो टू टी बाई डो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू डॉट बाय के, इधर ये आएगा, इज इक्वल टू 1/α इंटू ये। तो ये टर्म तो हो गया तुम्हारा जीरो बिकॉज इट्स अ स्टेडी स्टेट। ये टर्म भी तुम्हारा हो गया जीरो बिकॉज इट्स वन डायमेंशनल। ये टर्म भी तुम्हारा हो गया जीरो, क्यों, बिकॉज नो हीट जनरेशन। तो फाइनली क्या है हमारा, हमारा आया डो टू टी बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा सम कांस्टेंट वैल्यू। इसको एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा C1x प्लस C2। और फ्लक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज नथिंग बट क्यू डबल डैश इज माइनस के इंटू नॉट एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइनस के इंटू C1, ये यहाँ से आया। ठीक है, तो अभी लेट्स फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट केस दिया है, ये वाला केस मान लो हम कंसिडर कर रहे हैं। सो फॉर फर्स्ट केस, फॉर केस वन हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है T1 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 तुम्हारा हो गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें निकालना है डी टी बाई डी एक्स क्या है और फ्लक्स क्या है। तो वी विल जस्ट यूज दिस फॉर्मुलेशन, लेट्स फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं, अच्छे से लिखते हैं इसे, दिस इज equation 1 and temperature is C1x plus C2. This is equation 2 and this is equation 3. तो तुम्हारा T1 दे रखा है हमें, ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स इज नथिंग बट माइनस के इंटू डी टी बाई डी एक्स, जो कि क्या है, माइनस टी इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाय थिकनेस विच और लेंथ। ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस के इंटू फाइनल क्या हुआ, यहाँ पे फाइनल हुआ हमारा T2, ये दे रखा है, इनिशियल दे रखा है T1, ये तुम्हारा हो जाएगा T2 माइनस T1 ऑन एल। इसका मतलब फ्लक्स इज नथिंग बट, और के की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है 50। so it's going to be -50 watt per meter square Kelvin multiplied by T2 minus T1। ठीक है, T2 minus T1 which is -20, ये वाला वैल्यू माइनस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय L which is 0.25 मीटर। तो फ्लक्स तुम्हारा आ जाएगा कितना, -50, और इसका क्या वैल्यू होगा, डिग्री सेंटीग्रेड बाय इधर मीटर है, दिस इज मीटर, वाट पर मीटर केल्विन। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड बाय मीटर। ठीक है, तो फ्लक्स तुम्हारा आ जाएगा -50 मल्टीप्लाइड बाय 280
तो फ्लक्स तुम्हारा आ जाएगा 14 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एंड dt by dx which is nothing but t2 minus t1 by l वो आ जाएगा हमारा 280 minus 280 actually minus 280. This is the final value. ठीक है. Similarly, let us do one more. उसके बाद I think you could do. So let's try to do the fourth one. ठीक है, एक या फिर थर्ड वन करते हैं. So for case 3, we are given T1 दे रखा है हमें 70 70 क्या है 70 डिग्री सेंटीग्रेड. T2 we have to find out, but here what we have been given is dt by dx is 160. ठीक है, तो dt by dx हमें पता है प्रीवियस से is nothing but t final minus t initial divided by l. और t final क्या है हमारा t2 which is t2 minus t1 by l. t2 हमें पता नहीं है, t1 हमें दे रखा है 70. ठीक है, divided by l which is 0.25 और dt by dx हमको दे रखा है 160 watt per meter is equals to t2 minus 70 by 0.25 watt per meter. ये हमारा हो जाएगा. This gives us the value of T2 as कितना मिलेगा 110 बराबर. ये हमारा हो जाएगा T2. Okay, and dt by dx, how will you find out? dt by dx would be, let us do in the next thing. dt by dx तो ऑलरेडी गिवन है. फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स इज माइनस के इंटू dt by dx. ये क्या है माइनस के की वैल्यू इज के की वैल्यू हमें दे रखी है. के की वैल्यू क्या दे रखी है? आई थिंक -50 दे रखी है. Right? या 50 दे रखी है के की वैल्यू माइनस ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय dt by dx हमें दे रखा है 160. तो इसका मतलब फ्लक्स आया तुम्हारा -8. राइट, -8 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर बराबर. दिस इज नथिंग बट -8000 हो जाएगा ये. तो 8000 को 1000 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट दिस वैल्यू. द लास्ट वन जो हम कर सकते हैं विल डू द ओके सो इट्स ओके. तो यही प्रॉब्लम केस 3 एंड देन विल डू केस 4 आल्सो. केस 4 में क्या दे रखा है हमें? केस 4 वी आर गिवन T1 वी आर नॉट गिवन. और ऐसे लिखते गिवन क्या है हमें? गिवन वी आर गिवन T2 वैल्यू इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड dt by dx ये हमें दे रखा है -80 केल्विन बाय और डिग्री सेंटीग्रेड बाय मीटर. तो हमें निकालना है dt by dx और dt by dx गिवन है हमें. तो ये तो हमें पता है कि dt by dx इज नथिंग बट t फाइनल माइनस t इनिशियल डिवाइडेड बाय l जो कि हमारा t2 माइनस t1 बाय l जो वो इसका मतलब -80 इज इक्वल्स टू 40 minus t1 by 0.25 which implies t1 is equals to 60 degree centigrade बराबर. and flux which is nothing but double dash is minus k into dt by dx. इसका मतलब -5 multiplied by -80 which comes out to be
sorry, it's not 5, it's 50. 50 multiplied by minus 80, so it's 4000 watt per meter square. तो इसका मतलब फ्लक्स इज -4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि assume steady state one dimensional heat conduction through the asymmetric shape as shown below, assuming constant properties and no internal heat generation. Sketch the temperature distribution on tx coordinate and briefly explain the shape of your curve. So let us try to ये it's a steady state. इसका मतलब again let me use green color. तो given है हमें steady state. इसका मतलब dou t by dou t is equals to 0. It's one dimensional. या फिर तुम ऐसे बोल दो टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स वन डायमेंशनल. इसका मतलब dou t बाय dou y इज इक्वल टू dou t बाय dou z इज इक्वल टू 0. इसका मतलब टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y एंड z. तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज ओनली अ फंक्शन ऑफ ओनली वन डायरेक्शन विच इज दिस x डायरेक्शन. ठीक है. तो एसिमेट्रिक शेप, इसका मतलब एसिमेट्रिक शेप. इसका मतलब एरिया इज नॉट कांस्टेंट. इसका मतलब वी कैन नॉट यूज दिस एक्सप्रेशन. Remember, we cannot use this expression. And it is also given the constant properties. Properties are constant. इसका मतलब क्या हुआ? Constant properties. इसका मतलब Cp, K and rho, these are constant values. These do not change with respect to time or position. And internal rate of heat generation is also 0. इसका मतलब again Q dot is equals to 0. हमें अभी निकालना है. So we are asked to find. We are asked to find what is the temperature distribution across दिस सैंपल. तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे? सो इसके लिए हम एनर्जी बैलेंस, रादर देन यूजिंग दिस एनर्जी बैलेंस दिस डो टू दिस एक्सप्रेशन डो टू टी प्लस क्यू डॉट बाय के, हम क्या करेंगे, हम एनर्जी बैलेंस करेंगे. वी विल डू, लेट्स मी फर्स्ट राइट टू फाइंड टेम्परेचर प्रोफाइल. So for this, since we cannot use generalized energy balance equation, which is ये वाला, we will do the energy balance without any assumptions. ठीक है. तो इसको कैसे करेंगे हम?
सो लेट अस टेक कि एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे हम. लेट अस टेक दैट दिस इज द स्मॉल एलिमेंट. ये है एक स्मॉल एलिमेंट. ठीक है. ऑफ लेंथ इसका मान लो लेंथ है dx. इसमें ये स्मॉल एलिमेंट है. ठीक है. एट पोजीशन x. ठीक है. और इसका जो थिकनेस है dx है. और द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग इनसाइड दिस इज qx. ठीक है. एंड द टोटल एनर्जी विच इज गोइंग आउट इज qx प्लस डेल्टा x. एंड एक्यूमुलेशन टर्म इज लेट्स से q accumulation. ठीक है. तो एनर्जी बैलेंस, लेट अस राइट दिस डाउन. लेट अस डू energy balance on a small, infinitesimally small element of the shape of thickness dx at a distance of x units from the origin. तो ये तुम्हारा जो पॉइंट है, ये और ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये तुम्हारा हो गया ओरिजिन. तो क्या है जनरलाइज एनर्जी बैलेंस, जो कि है इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू माइनस एनी लॉस इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन. तो क्यू इन क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गोइंग इनसाइड. So qx or q at x equal to x. What is going out? Going out is q at x equal to x plus dx or delta x. What is generation? Generation हमें दे रखा है 0. बराबर, क्योंकि देर इज नो हीट रेट ऑफ हीट जनरेशन. हीट जनरेशन हमें 0 दे रखा है. लॉस कितना है? लॉस भी 0 है क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है. एक्यूमुलेशन दिस इज ऑल्सो 0 बिकॉज इट्स अ स्टेडी स्टेट. ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ? qx माइनस क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0. राइट. तो अगर हम इसे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा एक्स, हमें क्या मिलेगा? क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि अगेन हमारा हो गया 0. नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0. और ये क्या है? इट्स लाइक लिमिट x tending to delta x tending to 0 f of x minus f of x plus h. इसको h ले लो, h tending to 0 divided by h. So from your derivative का definition, this is the definition of derivative. ये nothing but this is also equal to df of x divided by dx. बराबर. तो इसका मतलब हो जाएगा, so this basically means that d by dx of minus qx इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यही हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0. बराबर. एंड व्हाट इज दिस क्यू? दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. फ्रॉम फोरियर्स लॉ we know that qx is nothing but minus k into area into dt by dx.
तो या इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस के इंटू एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें वी आर गिवन दैट प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज, वी आर गिवन दैट प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज। इसका मतलब क्या, वी कैन टेक दिस के आउटसाइड द डेरिवेटिव, सिंस वो जीरो ही है तो वी कैन बेसिकली से कि डी बाई डी एक्स ऑफ एरिया इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इसको इंटीग्रेट आउट कर देंगे हम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट क्या, हमें मिलेगा a इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, राइट। तो दिस इज द की एक्सप्रेशन, इसका जो की एक्सप्रेशन है ये। नाउ लेट अस लुक एट दी जो सिस्टम में हमारा, देखो तो यहाँ से अगर हम आप कॉमन सेंस लगाए तो you would find as we are going in the x direction the cross sectional area is increasing, मतलब ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, डी टी बाई डी एक्स शुड डिक्रीज, राइट। लेट अस राइट दिस डाउन। नाउ फ्रॉम फिगर it is clear that as we move from left to right, that is in increasing direction of x, the area also increases, but the product of area and temperature gradient, has to remain constant, बराबर ना। दिस a into dt by dx has to remain constant। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स dt by dx decreases as x increases because area increases, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्रोफाइल आएगा टेम्परेचर, दिस मीन्स दैट temperature should decrease, that the temperature has to decrease as x increases, बराबर। तभी ना डी टी बाई डी एक्स डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब जो तुम्हारा वो रहेगा टेम्परेचर प्रोफाइल जो रहेगा वो तुम्हारा ऐसा रहेगा। लेट मी राइट दिस डाउन, ऐसे कि ये तुम्हारा हो गया एक, और लेट मी डू इट दिस वे, ठीक। ये ऐसा तुम्हारा प्रोफाइल रहेगा। ये तुम्हारा हो जाएगा T1, ये तुम्हारा हो जाएगा T2,
ये तुम्हारा रहेगा एट x इक्वल टू x1, ये तुम्हारा रहेगा एट x इक्वल टू x2, ये तुम्हारा रहेगा टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस, ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे। ये ऐसा तुम्हारा टेम्परेचर प्रोफाइल रहेगा। That as x is increasing, as x increases, area increases, hence dt by dx decreases. ठीक है, similarly, fourth question and fifth question, so the solution are already provided. You can go through the fourth question. Fourth is similar है, it's very similar, just in the इस case में हमने there is no heat generation. In the next question there is heat generation, so it's just going to the way it's gonna change is only the expression is going to remain the same, but overall the procedure almost remains the same. वही तुम्हें एनर्जी बैलेंस करना है, वही तुम्हें वैल्यू ऑफ के तुम्हें निकालना है. So I hope everything is clear. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है. आई थिंक अगर इवन इफ आई माइट हैव गॉन अ बिट फास्ट, अगर तुम लोग सॉल्यूशन जो मैंने दिया है अगर वो पढ़ोगे तो you will be able to those solutions are quite detailed, you will be able to understand it. और अगर नहीं तुम्हें समझ में आया तो we can discuss in next class. ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. I will close the class. Thank you for joining. Let's see in the next class. ठीक है, thank you. Thank you, sir. Good evening, sir. Okay, sir.